ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جی بڑا پڑھ گیا ہے, بڑی سائنس پاؤندی ہے, لیکن بعض جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھنے والے بچے جو ہیں گھر میں تھوڑی سی کہہ لیں کہ ان میں رونق آ جاتی ہے, تکبر آ جاتا ہے, بعض دفعہ اپنے ایکسٹرا کانفیڈنس ان میں آ جاتا ہے. اس حوالے سے کہیں اخلاقیات بھی کہیں دب جاتے ہیں. کیا سائنس اور اخلاقیات ایک دوسرے کی لازم ملزوم ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایسی سائنس جی جی جو اخلاقیات کو اگنور کرے جی جی وہ تعلیم ہی نہیں ہے, تعلیمی اور ایسی اخلاقیات جو سائنسی ترقی کو یہ سمجھے کہ نہیں ہونی چاہیے, وہ اخلاقیات بھی جو ہے نا میں اس کا بھی میں حوصلہ نہیں کرتے آپ, حوصلہ افزائی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے. سائنس جو ہے نا اخلاقیات کے اندر رہ کے کی جائے تو یہ ترقی یافتہ قومیں دیکھیں نا آپ کہاں پہنچی ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں. ندیم صاحب یہاں بیٹھ کے لوگ ستارے گن رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سائنس ہی تو راہ دکھاتی. یہ آج ایک لازم ملزوم سبجیکٹ ہے کہ آج کے دور میں جب یعنی کہ 70 دہائیاں گزر گئی ہیں ہماری, مطلب 70 سال ہو گئے ہیں کہ بھئی ہم مطلب کہ ترقی کے اس نج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہمیں پراؤڈلی اپنے آنے والی جنریشن کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے وسائل بھی سائنس حقیقتوں کو منزل تک لے لینا چاہیے. اچھا آپ سمجھتے ہیں ایک مثالی سائنس کلاس کیا ہوتی ہے اسکول کے حوالے سے بھی اور کالج کے حوالے سے؟ میں کہتا ہوں کہ جو ایک مثالی کلاس ہے نا جی, اس میں وہ آڈیو ویڈیو ایڈز جو ہے نا جی بہت ان سے منسلک ہوئے. یہ جو بچے آج سائنس پڑھتے ہیں نا جی, اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ تمام جو ایسی مطلب جیسے جیمنائی ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, پرپلیکسی ہے, کلاؤڈز ہیں, یہ مطلب اس کو بچے کو اس طرح سے آئے کہ ٹیچر نہ بیسیتے ٹیچر نہ کام کرے اس کے ساتھ, ٹیچر بیسیتے فیسیلیٹیٹر کام کرے, خود وہ ٹاسک اچیو کرے. آج اور پرانے دور میں بنیادی جو فرق ہے نا وہ یہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ انما بعثت معلما, ٹیچر کی ضرورت ختم نہیں ہو سکتی, لیکن اس کی مطلب کام کرنے کا انداز بدل گیا کہ ٹیچ کرنا بدل گیا, فیسیلیٹیٹ کرنا رہ گیا. رہنما جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے, منزل پہ نہیں پہنچاتا, منزل پہ آپ نے خود جانا ہے, لیکن آپ سمجھیں کہ رہنما کے بغیر آپ ترقی پالیں گے, یہ نہیں ضروری. اب ٹیچر کا کام ٹیچنگ سے زیادہ فیسیلیٹیشن جو ہے نا, فیسیلیٹیٹ کرنا. یہ چلیں ایک اور بھی سمیع بصری معاونات بھی آپ نے ذکر کر دیا, تو دیکھنے سے سننے سے یا آپ کا ویژن یا آپ کہیں کوئی سائنس میوزیم میں جا رہے ہیں, سائنسی میلوں ہیں یا جو پروڈکٹس دے رہے ہیں, تو یہ اس کا خاطر خواہ بچے کی ایجوکیشن میں پروموشن میں فائدہ ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کو یہ جو لرننگ رٹا بازی میوزیم میں لے سارا دن جو ہے نا وہ وائٹ بورڈ کے اوپر دیکھتا رہے, لکھتا رہے, ریلیکسیشن ضروری ہے, لکھتا رہے, یہ ہینڈ رائٹنگ لکھائی, یہ اب چیزیں کافی دور ہو گئی. آپ نے انگلیوں کے پوروں سے لکھنا ہے, اب قلموں والی بات ختم. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں قلم کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہ والی جو ہم کانے کی قلم استعمال کرتے تھے پینسل, یہ نہیں کوئی اور ہے, قلم کا ترجمہ ہی کوئی اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ قلم کے ذریعے سکھایا, وہ بات ہی کوئی اور ہے, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یقین مانیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر جتنے ایگرلی لوگ پڑھائی کو پسند کرتے ہیں نا, رہنما ٹھیک ہو جائے نا, یہ ملک ود ان ایئرس یہ اڑنے لگے. بالکل صحیح بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام تعلیم جو ہے, ہماری طالبات جو ہیں یہ اس سے پورا استفادہ لے رہی ہیں, اور سائنس کے سبجیکٹ میں خاص طور پر طالبات کہیں پیچھے تو نہیں رہ رہی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ کچھ ہیں جو جن کے والدین بڑے سلجھے ہوئے, بڑے ماڈرنائز انلائٹڈ ماڈریٹ, جن کی بیٹیاں آج لڑکوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, لیکن میجارٹی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی میجارٹی طالبات ایسی ہیں جن کے والدین, میں بچوں کا کبھی بھی قصور نہیں کہوں گا, جن کے والدین یا معاشرتی اسلوب کچھ ایسے آرتھوڈاکس ٹائپ ہیں کہ ان کو مواقع ایکول لڑکوں کے ساتھ نہیں مل رہے, اور یہ صریحاً
ज्यादती है, और ये पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा है। ये पेरेंट्स एक की तरफ मतलब मुआशरे की तरफ से कि सारी हमारी जो आबादी जो है 80% तो देहाती आबादी है, वहाँ पर उसके रवायात भी हैं, कस्टम्स भी हैं, कुछ उनके अपने ख़ानदानी मसाइल भी होते हैं, और वहाँ पर एक हरासमेंट का मामला भी आज के दौर में ज़रूर आड़े आता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उनको मौके देने चाहिए और पूरी फैसिलिटेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से जानी चाहिए, ताकि तालिबात जो हैं वो भी साइंस के मैदान में इंसेंटिव रखना चाहिए, स्कॉलरशिप रखना चाहिए बेटियों के सिपाही की लड़कियों। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात, ताकि वालिदैन एनकरेज करें उनको और जाएं। अच्छा, वैसे चले आप समझते हैं कि चले एक साइंस का शोबा नहीं है, तो इसके अलावा भी तो बहुत से शोबे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ना तालिबात को और दीगर शोबों में, किन शोबों में वो अपने आप को बहुत बेहतर तौर पर? सर नदीम साहब, आप चूंकि मजे हुए आदमी हैं, हमने आपसे बहुत सीखा है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपसे आपके सामने बैठना मेरे लिए फख्र की बात है, ईमानदारी से मैं अपने दिल से ये बात कर रहा हूँ। मैं तो अपने साथ तिफले मकतब समझता हूँ, अपने दिल से ये बात कर रहा हूँ। आप लोगों से सीखा हमने, बिलखसूस आपने बड़ी जगहों पे मेरी रहनुमाई भी की है। एक लड़की को या तालबा को पढ़ाना, एक तालबा को पढ़ाना नहीं है, कौम पूरा खानदान को पढ़ाना है, एक मुआशरे को पढ़ाना है, एक मुल्क को पढ़ाना है। बुनियादी दरसगाह है वो बच्चों की, और जब आप उसको पढ़ा के आगे निकालते हैं तो वो तो कुछ भी कर सकती है। खानदान को जी हाँ, जो आपने सवाल किया पर्टिकुलर कि किन शोबों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मैंने गिलानी साहब, ज़िंदगी में ऐसा दिन शायद ही गुजरा हो जिस दिन मैंने कुछ परिंदे या पौधे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाए रखे। वाह माशाल्लाह, मैं सच्ची बात ही, आज भी मेरे पास मुख्तलिफ नहीं आप हैं तो आप, मैं बड़ी माज़रत के साथ मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह बड़ी बिज़नेसमैन किस्म की शख्सियत। फिर भी मैंने जानवरों के अंदर भी देखा है कि जो मेल और फीमेल सिन्फ है ना जी, उनके अंदर मुख्तलिफ अंदाज से फ़र्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे शोबे ऐसे हैं, लड़कियों को आज़ादी होनी चाहिए, जो जुर्रत से आए वो किसी भी शोबे में आ जाए। लेकिन फिर भी मैं वालिदैन से ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ शोबे हैं जिनके साथ वो अपने बच्चों का, अपने घर का भी ख्याल रखें। मसलन मैं कहता हूँ तिब का सारा शोबा जो है ना, वो बेटियों को दे देना चाहिए। मैं कहता हूँ बैंकिंग सेक्टर, जहाँ AC में बैठ के बेटी ने शीशे के आगे काम करना है, वो सारा भी दे दिया जाए। मर्द ना भी हूँ तो निज़ाम चल सकता है। मैं कहता हूँ कि नर्सिंग का सारा शोबा अगर बेटियों को दे दिया जाए तो चल सकता है। मैं कहता हूं कि अगर मेल टीचर खड़ा नहीं, सामने फीमेल टीचर खड़ी है और वो पढ़ा रही है, बड़ा ऑनरेबल जॉब है, इज्जत भी उसकी बढ़ेगी। अगर टीचिंग का शोबा बेटियों को सारा भी दे दिया जाए तो मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मुझे ये कोई कहे कि माँ या बहन बेटी जाके सारा दिन मजदूरी करके तो अपने बेटे की तरबियत भी कर ले, तो मुझे लगता है कि शायद वो बड़ी कोई मतलब वो बेटी है, कर ले बहादुर, वरना ये मुश्किल काम है। आपने फोर्सेस के अंदर जाना, मैं कहता हूँ जाना चाहिए, लेकिन आप मुझे सिर्फ बताइए कि 8 घंटे एक बेटी खड़ी होकर ड्यूटी देगी, अपने बच्चे की तरबियत वो नहीं करेगी, उसको घर में कोई मेड रखना पड़ेगी, और मेड तरबियत उस लेवल की नहीं कर सकती जिस तरह से माँ की गो तरबियत कर सकती है। हमें जरूर रियासती लेवल पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन कहाँ जाना उसने, आज़ादी हर एक में जाने की होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और आपने मेरे एक सवाल को बड़ी खूबसूरती के साथ, मैंने एक पहले भी लफ्ज़ बोल दिया, दरिया को कूज़े में, वही दोबारा दोहराता हूँ कि दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है, कि यानी कि ख़वातीन को, तालबात को हर शोबे में इन होना चाहिए, लेकिन उनको पूरी तरह हमें फैसिलिटेट भी करना बड़ा ज़रूरी है। उनके लिए उनके पास एक घर भी है, उनके पास बच्चे हैं, उनके पास सास ससुर की जिम्मेदारी है, एक खामद की जिम्मेदारी है, चूल्हे की जिम्मेदारी है, तो इनको भी पेश नज़र रखते हुए उनको हमें ऐसी आसानियां भी देनी चाहिए। बहुत बड़े ओहदे पे चली जाए और घाट टूट जाए, ये तो गवर्नमेंट उनके, अगर वो गवर्नमेंट में आना चाहती है तो उनको फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, उनकी टाइमिंग के हवाले से हर तरह किया जाए। आखिर में जी एक लास्ट सवाल आज के पॉडकास्ट का, कि नौजवानों को आप कोई एक बात मसलन कि आपकी शख्सियत एक हमागीर शख्सियत है, मैं चाहूँगा कि ऐसा मैसेज जो राना इश्तियाक, प्रोफेसर राना इश्तियाक की तरफ से जाए, कि जो एक आज की पॉडकास्ट का एक मैं ये समझता हूँ, एक जुमला मैं ये समझता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेने की ख्वाहिश की, वाह, नहीं हुआ, ख्वाहिश को मरने नहीं दिया। आखिर मैंने अपना वो जो एम था ना, उसको पूरा करके छोड़ा है। मैं बच्चों से सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आज तो लड़कियों को भी कहूँगा, चूँकि हमारी CM पंजाब भी माशाल्लाह एक बेटी हैं, बेनज़ीर साहबा थी, तो मुझे नहीं लगता कि बेटियां बेटे इन दोनों में कोई फ़र्क है।
जब कोई ओहदा मिल जाए ना गिलानी साहब तो जनरल होता है, जनरल निगार को कोई फीमेल जनरल निगार नहीं कहता, सीएम पंजाब को कोई फीमेल सीएम पंजाब नहीं कहता। वो बच्चों के ज़हन में सिर्फ एक बात डाल दें जी जी कि जब आप मंजिल ऊंची रखेंगे ना तो फिर तो आपको मुश्किलात छोटी लगेंगी, बहुत अच्छी बात, और छोटी मुश्किलात को अबूर करना मंजिल तक पहुंचने के लिए आसान हो जाता आसान है। हो जाता कभी ना घबराएं, कभी अपना एम ना छोड़ें। मैं एक आखिरी फिक्रा बोल के इसको ख़त्म करता हूँ। मैंने पढ़ा था एचिसन के प्रॉस्पेक्टस के ऊपर कि परसेवरेंस कमांड सक्सेस, बहुत जो एम से जुड़ा रहे, वो मेहनत करता रहे, उसको मंजूर आखिर अल्लाह ताला उसको कामयाबी कामयाब करते हैं। देता बहुत है। शुक्रिया। आज हमारे पॉडकास्ट में इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, बड़ी बागोबहार शख्सियत, सियालकोट के मारूफ माहिर तालीम इलामा इकबाल कॉलेज से उनका ताल्लुक, बायोलॉजी का शोबा, और हर सियालकोट में प्राइवेटेशन में भी इनकी बहुत सी खिदमात हैं। हमारी खुशबख्ती है कि राना इश्तियाक साहब हमारे पास तशरीफ़ फरमा थे। अज़ीज़ान मन, आज का पॉडकास्ट साइंस के हवाले से था। राना इश्तियाक साहब ने बड़े सादा अंदाज में आने वाले नए तालिबात और तालिब इल्मों को इस बात का हौसला दिया है कि वक्त का तकाजा यह है कि हम साइंस सब्जेक्ट को अडाप्ट करके पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे शोबे जो हैं उनको हम नज़रअंदाज करें, लेकिन वक्त का तकाजा यह है कि हमें तहकीक और रिसर्च के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं उम्मीद रखता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। आप पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शदाबगंज कॉलेज के लिए दुआगो रहें कि ये एक पायनियर की तौर पर सियालकोट में अपना वजूद बनाए हुए है। हम इसकी कामयाबी के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। थैंक यू। अखलाकियात और साइंस, पाकिस्तान जिंदाबाद।